Assalamu alaikum, welcome to Power Table, where you come across people who are the movers and shakers of the industry, regardless of the fact they are in power or not. A powerful man once in a power corridor will always remain in the power corridor, directly or indirectly, because अगर आपने एक दफ़ा ताकत के ऐवान हिला दिए में, हमारे दोस्त हैं ताबिश गौर साहब, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अभी उनका भी जिक्र करेंगे, जिक्र खैर। वो बताया करते थे जब वो पाकिस्तान में आए तो जिन साहब से उनकी पहली मुलाकात हुई जैदी थे, बाकी उनका नाम नहीं बताया जा सकता, उन्हीं ने फिर आखिर में एलपीजी पॉलिसी के ऊपर तख्त का धड़न तख्ता कर दिया. बट वील टॉक अबाउट दैट. आई एम सो फॉर्चुनेट, लकी, ऑनर्ड, प्रिविलेज टू हैव former CEO of KL Electric, Monas Alvi साहब. Thank you, Monas. Assalamu alaikum. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you for coming, sir. आजकल तो आराम के दिन हैं. जी बिल्कुल, आजकल यकीनन as compared to what I was doing, यकीनन आजकल आराम है. How are you keeping yourself busy? Again studying things जो relate power sector से, बाकी चीज़ें, keeping myself updated, meeting people, you know, and soon hopefully inshallah I'll be doing something inshallah. FG school, FG college, KPMG, फिर उसके बाद दीवान. हम कहाँ से शुरू करें? स्कूल कॉलेज से करें, दीवान से करें, या KPMG से करें? स्कूल कॉलेज, कैंट पब्लिक. अब तो You were a sportsman also? Not a sportsman, yes, but गली मोहल्ले की क्रिकेट वगैरह. लेकिन आपने you have been a part of sponsoring events and you have been promoting sports for Karachi and events for Karachi. So देखिए जो के इलेक्ट्रिक है ना, it is synonym to Karachi. Absolutely. And when you are operating that kind of an organization, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो उसका सोशल नेटवर्क है, जो कल्चरल नेटवर्क है, जो सोशल फैब्रिक है, जो है, उसके अंदर आपको अंदर जाना पड़ेगा. और there are very difficult areas where अभी नहीं जाएंगे. मोनस भाई की अभी स्कूल कॉलेज में है, तो कोई स्पोर्ट्स कभी नहीं किया आपने? सिर्फ गली मोहल्ले की क्रिकेट वगैरह, हॉकी, गली मोहल्ले, लेकिन कोई not beyond that. Quickly, anything from KPMG? Again, the first professional day was at KPMG. Okay. Still, I remember all those days. Very interesting. I learned a lot from there. Alhamdulillah, I was part of the team which used to handle the major audits. Like उस वक्त जब ग्रीनलेस बैंक आया था, या ऐसे institutions आए थे जिसमें foreign reporting होती थी. You used to meet people जो के for a very senior level, and मतलब बहुत ही professional. At very early age, you were interacting with the highest management. Multinational. ANZ के आप सोचिए कि उस टाइम पे सीमा कामिल जो कि उसके बाद स्टेट बैंक की गवर्नर, डिप्टी गवर्नर हुई, and UBL की प्रेसिडेंट हुई. She used to be the corporate head, and मतलब when I was probably, I think I was hardly 20 or 22. Wow. I used to discuss with her the credit review जो होते थे, and you know, so alhamdulillah, I think KPMG ने हम लोग को enable किया foundation from what we were and what we subsequently did. इस पूरी ग्रोथ के अंदर KPMG का एक बहुत बड़ा रोल है. Well done. So thank you KPMG. फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, and you were working with the divans of our country who were so progressive, because I remember early to mid to late 90s, Diwan Group was a phenomena. From any sector, from sugar to textiles to fiber to, I mean, who was the mastermind there? देखिए वैसे तो इनके फोर फादर्स का बिजनेस था, जो कि वे बैक मतलब पटियाला से वो थे, एंड उन्होंने पूरा सेटअप किया था. पहले ओल्ड क्लोथिंग से शुरू किया, देन टेक्सटाइल, और फिर टेक्सटाइल से फाइबर. जो मॉडर्नाइजेशन इसमें की, उसका क्रेडिट जो है वो दीवान यूसुफ साहब को जाता है. उन्होंने कि ऑटोमोबाइल में वो आए, और उन्होंने BMW आज भी जो आप देख रहे हैं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान बाय दीवान यूसुफ का ये पर्सनल वो था. और एक टाइम पे तो मैं ये कहूँगा कि दीवान के पास हाइंडाई, किया, रोल्स रॉयस आज भी है, BMW, मित्सुबिशी. तो बस जो भी हुआ वो यकीनन इट वाज नॉट गुड, बट अगर वो ऑपरेट हो रहा होता तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल में मेरे ख्याल में दीवान के अलावा कोई और मतलब ग्रुप हो नहीं सकता था जिसके पास जापानीज़, यूरोपियन, उसके बाद कोरियन. और अगेन इफ़ यू वुड हैव बीन ऑपरेटिंग एट दैट लेवल विद सो मच ऑफ डीलरशिप, जो लोग आते उनके लिए बहुत ही एक्साइटमेंट होती है अगर वो दीवान की डीलरशिप या दीवान के नेटवर्क को यूज़ कर पाते होते. अच्छा, मैं दीवान का इंटरव्यू यूसुफ भाई के लिए पढ़ने के रखता हूँ. मुझे नहीं पता यूसुफ भाई पटियाला से हैं, क्योंकि आपके मेरे पटियाला पैग वाले शौक नहीं है. बट हैविंग सेड दैट,
What were the challenges that you were a trainer there, right? Yes. और उसके बाद फिर आप मतलब what prompted you to leave? It was the challenges जिस दीवान ग्रुप जिसका शिकार हुआ था या you had a better opportunity? आई थिंक मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी आई थी और दीवान में व्हेन आई वाज लीविंग आई हैंडेड ओवर द बटून टू अजीमुद्दीन साहब जो कि सॉक जैन एंड सिटी एंड अगेन उनके प्लान्स थे और वो आई थिंक इस वजह से मतलब इट वाज अ म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्जिट। उनको भी जो भी करना था, मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एंड वक्त ने ये साबित किया कि जब मैंने के इलेक्ट्रिक ज्वाइन किया लेकिन आई जॉइंड एज अ डायरेक्टर ट्रेजरी एंड आई वेंट ऑन टू बिकम द सीईओ। सो शायद मेरा फैसला सही था। अभी उस जर्नी पे बाद में आएंगे. So okay, so between Diwan and KE was nothing. It was from here to here. 30th January 2008 was Diwan, And 31st January was K Electric. के इलेक्ट्रिक। आपने नागा नहीं किया बीच में? कोई ना करना। जब अच्छा। मैं KPMG से दीवान भी किया था तो द लास्ट डे इन KPMG sometimes in October 1997 and the next day I was in Here. at Diwan, अब from हम KPMG to Diwan। 2008 पे आ जाते हैं. ये मुशर्रफ साहब जा चुके हैं, जरदारी साहब आ चुके हैं, ये स्विच जाने का आखिरी टाइम चल रहा था। अच्छा आप just your quick thoughts on, because I have seen Musharraf Saab's regime very closely as a business service provision entity, and I saw progress of multi-billion dollar. और मेरा उनसे may his soul rest in peace, मैं जब उनसे कहता था कि सर मैंने कभी आपको फीता काटते नहीं देखा, कहते थे सन दिस इज माई जॉब डिस्क्रिप्शन, आई गेट पेड फॉर इट, आई डोंट नीड टू डू इट. उसके बाद फिर खैर तो आप जब KE जा रहे थे तो आपको पता था कि आने वाले दिनों में एज ट्रेजरर क्या प्रेशर्स हो सकते हैं? आपने किसी से मशवरा किया होगा, इट्स क्वाइट अ कैरियर मूव. नहीं, बिल्कुल मैंने मशवरा किया था और जो चीज़ मैं अभी भी समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक के लिए बहुत रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है कि देखिए जब हम दीवान को देखते हैं ना तो दीवान सलमान जो कि उस वक्त पाकिस्तान की लार्जेस्ट ऐसे ही था, पॉलिएस्टर फाइबर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, मगर बंद हो गया, बिल्कुल ठीक है. रिप्लेस हो गया। टाइटैनिक तक करा चुका हुआ था पहाड़ से उस वक्त. देखिए बहुत सारी रीजंस थी, आप Okay. उसके लिए मेरे ख्याल में यूसुफ साहब का No, पॉडकास्ट I agree. कीजिएगा तो आपको सही बता पाएंगे। लेकिन सवाल आप लिख के लेकिन देंगे. कि इलेक्ट्रिक के अंदर जो है ना ये यकीन है कि बंद नहीं हो सकते। ये एक ऐसा काम है जो कि 100 तकरीबन 12 साल से चल रहा है, 13 साल से बल्कि 1913 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और जिस वक्त के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में कराची में बिजली सप्लाई कर रही थी ना उस वक्त हाफ ऑफ द US वाज विदाउट पावर। वो सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मतलब वेयर वर वी व्हेन वी डिड व्हाट वी डिड एज पाकिस्तान, कराची या इवन पाकिस्तान तो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट था, तो यहाँ पे जो लोग थे चाहे वो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, बट विजन जो है ना वो मैं कहूँगा कि उसको दाद देनी चाहिए। और मुझे इस बात पे यकीन है कि ये कंपनी जब कहते हैं ना एज मुस्लिम के सूरज सवा नेज़े पे होगा तो सवा नेज़े पे जा होगा ना तो ग्रिड्स मौजूद होंगे, तार भी मौजूद होंगे, पावर प्लांट भी कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे, कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद होंगे, तो क़यामत तक ये कंपनी रहेगी और चलती रहेगी, ये ख़त्म नहीं हो सकती। सूरज जब सवा नसीब होगा सोलर पावर हर किसी को मिल जाएगी, वो तो लेकिन पता नहीं कंज्यूमर क्या नहीं होगा. कंज्यूमर नहीं होगा, वो प्लांट भी जलना शुरू हो जाएगी, मगर उससे पहले तक बिल्कुल ठीक है. आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज and appreciative, honestly, because when a person leaves an entity or in some circumstances asked to leave, तो people वो रिलेशन कट जाता है, जो एम्बिकल कॉर्ड होती है. थैंक यू फॉर कीपिंग इट विद यू एंड बीइंग सो नाइस. सवाल पे आते हैं. सो जब आप ट्रेजरी पे आए, देयर इज अ जर्नी टू बिकमिंग द CEO व्हिच इज कपल ऑफ ईयर, तो it was exactly what you expected as an entity, and how did you take it further from there, from your predecessors? देखिए जब मैंने ज्वाइन किया ना उस वक्त इट वाज वेरी अर्ली डेज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, इट वाज प्राइवेटाइज्ड इन 2005. ठीक. और जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने के इलेक्ट्रिक को सीमेंस को दे दिया था कि वो उसका O&M करेंगे, और हमें ये नज़र आया था कि जब मैंने ज्वाइन किया तो देखा दैट यू नो द कॉन्ट्रैक्ट कुड हैव बीन नेगोशिएटेड बेटर, और बहरहाल जो भी हुआ अगेन उसमें नहीं जाना चाहिए. ये सवाल सोहेल बजाज साहब आपके लिए होगा जब आप सोहेल बजाज साहब ज़रूर पूछेगा, वो कहेंगे कि KE ने ठीक नहीं किया, लेकिन उसके लिए फिर किसी आर्बिट्रेशन की ज़रूरत है. द गुड थिंग इज दैट बिटवीन
Siemens and K Electric, there were claims and there were for दोनों की तरफ claims थे. 2012 में Siemens और K Electric ने उन सबको negotiate करके settle कर दिया. Very And good. today, in fact, हालांकि वो बिल्कुल tail end की बात है, लेकिन today the interconnection 1000 MVA which was built between 2020 and 24 is from Siemens. और जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट है कि इलेक्ट्रिक का 900 मेगावाट, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम सीमेंस. सो वॉट एवर हैपन इन द फर्स्ट 2-3 ईयर्स, हमने एक दूसरे से बात करके उसको सेटल किया. एंड आई थिंक इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर KE ऑल्सो, एंड इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर सीमेंस ऑल्सो, कि वो एक पुरानी हिस्ट्री थी, उसमें जो भी हुआ, किसी ने क्या किया, किसी ने नहीं किया, इट वॉज सेटल्ड एंड वी मूव्ड ऑन. सो ये पता था कि मसले हैं, बट देखिए जहाँ मसले होते हैं ना, वहीं पे फिर ग्रोथ का चांस होता है. Absolutely. आप किसी बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएंगे तो आपको सिर्फ ये होगा कि अच्छा मैं सेल्स ग्रोथ कितनी करा पाऊँगा, ऑपरेशन एक्सेलेंस उन्होंने कर ली होगी, पॉलिसीज़ उनकी बाहर से बन की आती होंगी. आपको अगर आपका शेयर 10% है और आपको उसको बढ़ा के 15 करना है तो फिर ये साल मतलब ये काम करने होंगे. लेकिन अगर आप एक कंपनी है जिसमें कि आई स्टिल रिमेंबर 2008 के हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे तो हमें कोई 80 अरब रुपए का लॉस था EBITDA लेवल. तो ये जब उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एक तो आपको ग्रोथ मिलती है और दूसरी बात ये रिकग्निशन भी मिलती है, और फिर उसके बाद सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड प्राइड. सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये लगता है कि यार कुछ किया है. And again, if you go back and look at, and we have various presentations when we used to show it, जहाँ पे कि हम ये दिखाते हैं कि ये हमारा सर्विस सेंटर था 2008 का और ये हमारा सर्विस सेंटर है आज का. इट इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट. ये आपको लोगों को शलवार कमीज़ में मेंटेनेंस का स्टाफ वर्सेस टुडे जमीन आसमान का फर्क है. कैन नॉट इमेजिन कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू वर्क इन अदर देन यूनिफॉर्म. इम्पॉसिबल कि वो PPE इस्तेमाल ना करे. अगर उसको 4 स्टेप चलने ना तो उसे हुक लगाना है. उसे अगर कहीं ऐसी जगह लाइव पर काम कर रहा है उसे फेस शील्ड लगानी है. नॉट ओनली ट्रेनिंग, कल्चरली उनको बताया जाता है. सो एंड अगेन जाहिर बात है हम एक प्राइवेट इदारा मतलब जिसमें मैंने काम किया वो है और कोई कमाल नहीं है. इट वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ना यू हैव टू इंश्योर कि आपके लोग जो है ना वो दे आर रिस्क अवर्स, और आपको नीचे से नीचे लेवल पे जाके उनको ये बताना है कि आप कैसे ऑपरेट करें सो दैट यू शुड गो बैक होम सेफ. Allow me to compliment you on this. I've been to BQPS1. आपने सीमेंस की बात की, आपके पास उनकी मशीन थी. आपके RLNG पे भी सीमेंस V94E है. मुझे वो वाला टाइम भी याद है जब BQPS1 चलता था और किस तरह से लोग उस पर ऑपरेट करते थे. और आई वॉज एट द प्लांट लास्ट ईयर ओनली, जब आपसे मुलाकात भी हुई थी, एंड इट वॉज अ शॉकर व्हेन आई वेंट. मतलब इट वॉज लाइक एनी इन साल्डोस प्लांट इन इटली और एनी अदर UAE की जो इनके प्लांट है दीवा के या वो. सो थैंक यू वेरी मच, द क्रेडिट गोज टू यू. वेल टेकन. अब वापस आ जाते हैं. सो जब you were a part of the transformation from public sector to privatization, या आपके आने से पहले? नहीं, प्राइवेटाइजेशन 2005 में हो गई थी. बट 2007 में जो एग्रीमेंट जो सीमेंस के साथ हुआ था वो टर्मिनेट हो गया. ओके. तो आप ये समझें कि जो लॉसेस थे ना वो कम हुए थे पहले 3 साल में, ना कोई और टेंजिबल मूवमेंट हुई थी. कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए थे और उसमें बड़ी सीरियस इश्यूज थे उस टाइम पे. जो भी लोग थे, मुझे भी याद है कि एक प्लांट थोड़ा सा आपको प्लीज बताएं कि वो एक प्लांट था जिसके कि सुबह आप समझें कि उसको उन्होंने चलाना था. तो मैंने उनसे कहा, हमारा ट्रेजरी था, जनरेशन के लोग अलग थे, कम्युनिकेशन के लोग थे. मैंने कहा यार प्लांट चलेगा, कोई मीडिया को बुलाओ. मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिक की इतने अरसे बाद आखिर 1994 में प्लांट लगा था, अभी एक मशीन चलेगी. उनका नहीं सर, अभी ना जब चल जाएगा ना तब बनाएंगे. तो दे वर स्केप्टिकल अबाउट इट. तो जब सुबह मैंने आगे पूछा कि क्या हुआ, कहते वो चला था लेकिन वो बंद हो गया. मैंने कहा क्यों? कहने लगे उसके फ़िल्टर फट गए. मैंने कहा यार क्या वजह थी? तो उन्होंने कहा कि वो उसमें ना जो फ़िल्टर वाज नॉट डिज़ाइन टू वाटर जो कि आया. तो जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि वो प्लांट जो डिज़ाइन हुआ था ना उसको वाटर का सैंपल दिया गया था, 30 साल पुराना था. वाओ. अब वो आज की डेट में वो 30 साल पुराना पानी वर्सेस आज का पानी, जब वो फ़िल्टर लगा
उस पे कहते हैं उसमें प्रॉन्स और मछली और पता नहीं, मैंने कहा यार चलो वही ले आओ कम से कम। ये आप बात कर रहे हैं वो जो वाटर चैनल आपका KBQPS पे ये आ रहा है? ये कंबाइंड साइकिल था कोरंगी पे। अच्छा, okay, okay, when they okay. provided the sample with test to the contractor, तो उन्होंने वो नया टेस्ट नहीं किया। अब ये 2006-2007 में कहीं हुआ होगा, तो पता नहीं कौन लोग थे। बहरहाल मतलब वाटर अंडर द ब्रिज, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक उसके बाद हमने बहुत मेहनत की और जो भी चीज़ें लगी हैं ये उसमें बड़ी मेहनत और So as a ट्रेजरर जो सबके स्टेक होल्डर्स थे या स्पॉन्सर्स थे या पार्टनर्स थे, अब सबसे ज़्यादा you were the one facing them? नहीं, मैं ट्रेजरी का हेड था। मेरी जिम्मेदारी होती थी कि मुझे तेल और गैस पूरी करनी होती। Okay. जो अच्छा उसमें थोड़ा सा ये ज़रूर होता था कि क्योंकि जब हम पैसे देंगे तो तेल आएगा, जब तेल आएगा तो बिन कासिम चलेगा। उस वक्त ठीक। हमारे पास बिन कासिम ही था। ठीक। तकरीबन आप समझ लें कि 200 मेगावाट की 220 मेगावाट की 6 छः मशीनें थी। मशीन। 2 थोड़ी सही नहीं चलती थी, लेकिन 4 बिल्कुल ठीक चलती थी। तो हम उससे कोई 1000 मेगावाट 900,000 मेगावाट बनाते थे, वेरी क्रिटिकल। तो मैं प्लांट वालों से ये ज़रूर बात कर रहा होता था कि आप, क्योंकि पैसे नहीं होते थे और इन्वेंट्री कम होती थी, तो ये ज़रूर बात होती थी कि अभी फ्लो रेट जो है ना वो आप बस सिर्फ 80 टन से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं फिर हमें जनरेशन कम करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई मत कम करो, अगर नहीं कम करोगे तेल ख़त्म हो गया, स्लज आ गया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पंपिंग में अभी 8 घंटे लगेंगे, अगर तुम्हारे पास इतना स्टॉक है तो तुम्हें फ्लो रेट ऐसा रखना है कि 8 घंटे बाद तुम्हारे Optimum. पास मिनिमम लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा तेल हो। तो जब वो ये जनरेशन कम करते थे तो मेरे पास ये फ़ोन ज़रूर आता था कि यार आपकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। हाँ। तो मैंने कहा भाई मैं खुद तेल नहीं बन सकता, मैं बगैर पैसों के तेल नहीं ला सकता। अब आपको अगर लोड शेडिंग कम करानी है तो तेल ख़त्म हो जाएगा तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। सो टेक्निकली ना घूम फिर के, क्योंकि पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था और क्योंकि मेरा दीवान में भी जो फोटे रहा था वो ये था कि मैं बैंक्स के साथ मेरी डीलिंग थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा उस वक्त जो बैंक्स थे, मतलब आई वुड नेम हबीब बैंक, जो कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट बैंक था। और उसके अलावा आप ये समझिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड, नेशनल बैंक, UBL, अल फलाह, इन सब लोगों ने के इलेक्ट्रिक, और अगेन नॉट बिकॉज ऑफ, मैं कहता हूँ वही बात है कि कोई आदमी मुझे पैसे नहीं दे रहा होता था, पैसे बिजनेस को दे रहा होता था। और उसके जो फंडामेंटल्स थे ना वो ये था कि यार एक कंपनी है जिसको शहर में बिजली सप्लाई करनी है, ये बंद नहीं हो सकती। तो लेकिन एक मिनट ठहर जाएं, अभी आपने मुझे स्लज की बात की ना तो मेरे अंदर का तेल ही जा गया। सो यू हैड अ पास थ्रू अरेंजमेंट विद PSO और ऑल OMCs who were the only providers? were buying from PSO. PSO. So PSO was the custodian of supplying. अब आप प्राइवेट टू स्टेट से डील कर रहे हैं। हाँ। So you had a different payment terms as if you were नहीं, state to हमारा एक state. फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट था, ठीक उसके है। अंदर एक क्रेडिट था। ठीक है। उसमें क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते, कभी कभी हम जाके उनसे कहते थे कि यार दे दो यार भाई हम दे देंगे पैसे, कल दे देंगे। और अगेन PSO वाले बहुत हेल्पफुल थे, मैं अभी भी कहूँगा दे डिड अ वेरी But must be गुड जॉब। the question is that if sludge was coming, then accountability तो उनकी होनी चाहिए to provide the right grade and spec. नहीं, देखिए किसी भी टैंक के अंदर एक आखिरी, अच्छा, okay. मैं कह रहा हूँ डेड स्टॉक। You were talking about dead stock, मैं not that. सॉरी, स्लज से मतलब ये कि अगर आप मिसाल Dead stock पे आ गए, ठीक हो गया। आपका टैंक है 10,000 25,000 टन का, तो आप उसको बिल्कुल आखिर तक नहीं निकाल सकते। Sir, कुछ done. तो- हाँ। नहीं, मगर मैं अब आपको एक नाम लिए बगैर, क्योंकि रिफाइनरी हमारी जानने वाली है, उन्होंने, मैं कस्टमर का नाम ले लूँगा ताकि किसी ने वेरीफाई करना हो, आर्टिस्टिक मिलनर के फर्नेस ऑयल जब दिया गया तो उनका ट्राई फ्यूल वाला वॉटसेला का इंजन ऑयल की क्वालिटी खराब। पार्टी तो बाद है, तो उनका इंजन खुला सारा वो है, एंड दे हैड टू शट डाउन एंड गो टू अल्टरनेट एनर्जी। बट चले वापस आ जाते हैं। हमारा एडवांस इसो के साथ बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। देयर वाज अ पाइपलाइन, ठीक, कोई ट्रक इस्तेमाल नहीं होते थे। फ्रॉम ZOT या ZOT से हमारे टर्मिनल पे पाइपलाइन थी। ठीक। 400 टन पर घंटा अभी भी मुझे याद है का फ्लो रेट होता था पंपिंग का। तो PSO के टैंक में बोट होके आता था, अगर साफ़ सुथरा वो टेस्ट करते थे, जैसे उनके टैंक में गिरता था वो पंप करके हमें देते, तो क्वालिटी का कोई इशू नहीं। ये अच्छे दिन थे जब क्रूड सस्ता था, फर्नेस ऑयल अवेलेबल था। हाँ। अब फर्नेस ऑयल अवेलेबल है, क्रूड सस्ता नहीं है, फर्नेस ऑयल लेने वाले नहीं, वापस आ जाते भी हैं। बहुत महंगा हो गया ना, मतलब 170 180 के ऊपर आप उससे आज बिजली बनाएंगे तो उसके ऊपर प्लस वो ड्यूटी पता नहीं मेरे ख्याल कौन में सी, 170-80 में ये जो वो शामिल है, जो लेवी लगी है फर्नेस ऑयल की, जो लेवी है शायद ये उसके शामिल साथ है एक हाँ, ये बार। शामिल चले है। चले ठीक है। अब तो जब गैस ही नहीं है तो फिर आखिर में पहुंचेगी वो जो See, हमारे थोड़ा अनफॉर्चुनेट है हम कि हम बिकॉज ऑफ वी हैव सच शॉर्ट, इसको कहते हैं फाउंडेशन की कोई चीज़ निकलती ना तो हम
एकदम से अब जैसे कि गैस का मसला हुआ है तो आई थिंक उस पे पूरे अभी हम आपकी ट्रेजरी से सीईओ तक की जर्नी जल्दी जल्दी कवर करते हैं ना. सो स्लज वाला वेल अंडरस्टूड. सो वो कौन सा टाइम था मोनिस भाई जब डिसीजन लिए गए कि हमने एक्सपेंशंस पे जाना है, हमने RLNG 2 लेकर आना है? देखिए हमने ना जब ये 2005 में प्राइवेटाइजेशन हुई थी ना, उसमें ये प्राइवेटाइजेशन में जो इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था कि आपको 1000 मेगावाट ऐड करनी है. ऐड करना है। ठीक. तो 1000 मेगावाट ऐड हुआ, 250 मेगावाट का एक कमांड साइकिल लगा, 100 मेगावाट के 2 जेन बैकर्स लेके डिफरेंट जगहों पे 560 मेगावाट का बिन कासिम 2 लगा। तो वो सारे ऐड कर दिए गए थे और उस वक्त लेकिन जो थोड़ा हमारे साथ यानी कि इलेक्ट्रिक के साथ सेटबैक हुआ, अभी मुझे आदत नहीं पड़ी है तो मैं नहीं, आप हमारे साथ बोलें. आई लाइक द सेंस ऑफ ओनरशिप. you know as long as I am here and they are here, Bless you, we absolutely. बिल्कुल so उस वक्त ये था कि सुई गैस हमको गैस दिया करता था, बट ओवर द पीरियड वो गैस जो है ना वो उनकी डिटीरियोरेट होती चली गई। ओरिजिनली तो ये था कि हमारा GSA हो जाएगा, ये लिखा हुआ भी था इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट में भी कि हमें हेल्प होगी इन ऑर्डर टू गेट द नेचुरल गैस, लेकिन वो गैस नहीं मिली। और Right. फिर इनएडवर्टेंटली प्लांट जो है वो कम भी चले, फिर उसके बाद LNG पे भी, वो तो खैर बाद में LNG पे भी चले, और फिर यूटिलाइजेशन कम थी क्योंकि SSCC अगर हमको गैस देता भी था तो वो कहता कि आप हमसे LNG ले लें। LNG महंगी थी तो उसकी डायनामिक्स चेंज हो जाती थी, लेकिन बहरहाल ये कि GSA हमारा, और ये शायद आप समझ लें कि हाइंडसाइट के अंदर गलती कह लें कि पहले हमको GSA करना चाहिए था, फिर प्लांट लगाने चाहिए Correct. थे ताकि हमारे पास आती रहती गैस। लेकिन बस कहते हैं ना कि Chicken and egg. बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करते हैं तो असद उमर साहब, ये कादिरपुर पे लगाया गया जो आपका एंग्रोफर्ट था, ये वही वाला सिचुएशन है, लेकिन विल डिस्कस एज विद यू. ओके. अच्छा, तो अब आप एक, आई डोंट नो ये आपके CEO बनने के बाद की बात है या उससे पहले की बात है. आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल इन इस्लामाबाद और उन्होंने कहा यार ये मोनस साहब करते क्या हैं कि अपने प्लांट बंद रखते हैं और सारी बिजली हमसे पंजाब से लेते रहते हैं, एक्सपोर्ट करवाते हैं और अपने प्लांट बंद कर देते हैं. ये क्या कहानी ये थी? जो है ना ये ये बहुत स्पेकुलेशन है, बहुत बातें पुरानी- हैं, क्या बहुत है ये? पुरानी 2012-13 की बातें हैं ये। अभी हम वहीं पे है ना, 12-13 पे हैं. तो देखिए होता ये था कि ना हमारे पास अगर पैसे नहीं है और बाहर जो बिजली आ रही है, इंपोर्ट जो हो रही है CP NTDC से, अगर वो सस्ती है तो ये एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर होती थी कि आप पहले सस्ती, क्योंकि देखिए टैरिफ जो है ना, टैरिफ ये है कि आपकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो पास थ्रू है, करेक्ट. और आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके टोटल डिटर्मिन टैरिफ जो भी होता है वर्सेस जो कंज्यूमर टैरिफ है उसका डिफरेंशियल सब्सिडी देती है। तो यूटिलिटी जो है ना वो इट इज़ ऑब्लाइज्ड टू यूज़ द चीपेस्ट पावर बिफोर यूटिलाइजिंग इट्स ओन उस प्लांट। पर एक मुझे थोड़ा सा एकेडमिकली गाइड कीजिएगा मोनिस भाई, कि अगर हमारा फ्यूल का वेटेड एवरेज है और अगर वो वेटेड एवरेज पूरे पाकिस्तान में कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड गिवन वो, तो अगर हम उसके ऊपर पावर जनरेट कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्डाइज टैरिफ कर सकते हैं अगर उसको हम फिक्स सेट कर लें. देखिए आपके पास ना पाकिस्तान में 2 जनरेशन पूल है, एक पूरे मुल्क का राइट. और एक के इलेक्ट्रिक का। हाँ, ओके. के इलेक्ट्रिक का पूल अलग है। के इलेक्ट्रिक सुतेला बेटा है. नहीं सौदा Not the right word. नहीं Okay. देखिए बात ये कि आप आज भी अगर किसी और यूटिलिटी को प्राइवेटाइज करेंगे ना तो आपको ना उसको इस बात की गालिबन इजाज़त देनी पड़ेगी कि या तो तुम जाके खुद से बिजली खरीदो और बेचो. बेचो, या अगर लगा बनाओ. सकते हो तो लगा लो प्लांट। ठीक. इसकी वजह यह है कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो कब तक ये जिम्मेदारी लेती रहे कि वो सारी पावर प्रोक्योर करेगी और वो सबको देगी और सारों की डिमांड पूरी करेगी। अच्छा यही क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा 1913 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो केई में प्राइवेटाइजेशन से पहले भी पावर प्लांट्स थे। ठीक. तो ये किसी कोई मुनिस सलमी ने या ताबिश गौहर ने या किसी और ने ये डिज़ाइन नहीं किया। जब प्राइवेटाइज हुई थी उस वक्त भी केई के पास पावर प्लांट्स थे, तो अगर ये प्राइवेटाइज नहीं होती तो भी 2 जनरेशन पूल होते। इसकी वजह यह है कि जैसे कि आपने कहा ना हमसे मतलब फेडरल गवर्नमेंट का ये है कि आप वो एक हद तक ले सकते हैं आप, और उस वक्त वो 650 मेगावाट थी। अब सवाल यही पैदा होता है कि आप 650 मेगावाट बिजली ना लें तो आपको अपने प्लांट चलाने पड़ेंगे। अगर वो फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं, राइट. और देखिए आज भी फर्नेस ऑयल नेचुरल पूल से महंगा है, और मैं आई कैन नॉट
अब मैं वैसे भी काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुझे ये A man is exactly as old as he thinks. I would not tell about a woman as she looks, but हाँ. तो मगर 2011-12 में भी ना अगर फर्नेस ऑयल पे यही का प्लांट चलता और नेशनल पूल की बिजली अवेलेबल होती तो नेशनल पूल सस्ता होता। Right. उसमें हाइडल होता है, Right. उसमें न्यूक्लियर होता है। ये कभी भी कोई प्राइवेट यूटिलिटी मैच नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर पाएगा। तो एक फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो रिड्यूस, मतलब वो कम होनी चाहिए। मतलब आप उस वक्त की बात बता रहा हूँ, आप 4 रुपए की बिजली को बंद करके अगर 9 रुपए की बिजली बनाएंगे तो आप टैरिफ बढ़ा देंगे। लेकिन आप टैरिफ पे जाने से पहले मुझे ये बताएं, यू हैव अ डिफरेंट कंसेप्ट अबाउट आवर हाइडल एंड विच इज़ वेरी रियलिस्टिक। आप हमेशा कहते हैं हाइडल पे डिपेंडेंस हमारी इसलिए नहीं हो सकती कि हमारी जो वाटर अवेलेबिलिटी है इज नॉट इंश्योर्ड एंड गारंटी। देखिए, तो इसका मतलब ये है कि आप ना मुल्क को हाइडल पे चला नहीं सकते। राइट। लेकिन एनर्जी का जो मैं आपको बताऊं, जिसने भी किया, चाहे ये 2000 में हुआ, चाहे ये 2010 में हुआ, चाहे 2015 में हुआ, चाहे 2020 में, तो 5 साल में नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान का जो एनर्जी मिक्स है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉबली, एंड आई थिंक आई एम राइट, इट इज़ प्रॉबली अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी जो, जब हम नेशनल पूल की एक बात 5 करते साल हैं के बच्चे को समझाएं वो क्या होता है और कैसे। कि जब आप तमाम पावर सोर्स को जमा करते हैं, राइट। चाहे वो हाइडल हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो इम्पोर्टेड कोल हो, चाहे वो लोकल कोल हो, चाहे वो एलएनजी हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो गैस हो, चाहे बिल्कुल वो ठीक है। एलएनजी लोकल, गैस हाँ ही, बिल्कुल ठीक। इसकी कॉम्बिनेशन करके जब एक बिजली सप्लाई की जाती है तो इसकी कॉस्ट क्या है। और आप जाके ना ये खुद रिसर्च कीजिएगा कि पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स की कॉस्ट वर्सेस इंडिया की एनर्जी मिक्स की कॉस्ट क्या है। पाकिस्तान इज चीपर देन इंडिया। But is it because we have some subsidies on our fuels नो also? नो नो नो, Without subsidy? सर आप एलएनजी, मैं तो कह रहा हूँ आपके फ्यूल मिक्स में एलएनजी है। एलएनजी तो वही प्राइस है जो दुनिया के अंदर है, कोई आपको डिस्काउंटेड थोड़ी मिलती है। बल्कि आपको तो ये जो पोर्ट कासिम की रॉयल्टी, वो जो 2 टर्मिनल के, वो सारी उसके बावजूद भी सस्ती। उसके बावजूद भी Nice. मतलब मैं पूल की बात कर रहा हूँ। राइट राइट राइट। सो आई थिंक हमारा एनर्जी मिक्स इज वेरी गुड। Okay. प्रॉब्लम इज के जो कैपेसिटी है ना, आप उस कैपेसिटी को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। ह्यूमन कैपेसिटी या पावर जनरेशन कैपेसिटी। ओके। और देखिए, आप जो बात करें ना कि किसी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका फ्यूल मिक्स इतना अच्छा है तो इसका मतलब है कि आप compete कर सकते हैं दुनिया से। अगर आपकी कैपेसिटी को किसी तरीके से आप मैनेज कर लें, आप डिमांड क्रिएट कर लें, अगर गवर्नमेंट के पास एबिलिटी हो कि वो अपनी जो कैपेसिटी कॉस्ट है जिस विच इज़ नॉट fully utilized because of variety of reasons, not entirely in control of only Ministry of Finance, only Ministry of Power, only Ministry of Petroleum, मतलब बहुत सारे नो दुनिया। आई एम टॉकिंग टू सीईओ के इलेक्ट्रिक के जब नॉलेज भी थी, अवेयरनेस भी थी, प्रॉब्लम भी था, डेफिनेशन भी थी, सोल्यूशन भी था, तो व्हाई वर यू नॉट एबल टू कन्विंस द स्टेक होल्डर्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम एट द रूट कॉज? नहीं देखिए, उन्होंने किया, हम लोग ये बात करते थे, आपने देखा इंक्रीमेंटल पैकेज लेकर के आए इंडस्ट्री के लिए, बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, बट आई थिंक कि जो ये जो जितनी भी रिफॉर्म्स की बातें हो रही है ना, जिसमें कि देखिए, मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जो एलिफेंट इन द रूम है ना, वो ये है कि आर एबिलिटी नॉट टू कलेक्ट द टैक्सेस दैट वी शुड हैव बीन कलेक्ट। देखिए, अगर फॉर फ्रॉम द एग्जांपल नॉन टैक्स पेयर्स फ्रॉम और फ्रॉम द थीव्स। ये अब ये बात के थीफ के शबर भाई, अब आपसे बात करना है। शबर भाई इसके ऊपर बहुत अच्छी बात आई नो। करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर 240 मिलियन लोग हैं और आपके पास गालिबन 40 लाखों लाख में या है tax 50 paid लाख रिटर्न फाइल Not- होते हैं, हाँ। जिसमें कि 28 लाख शायद नील रिटर्न है, यानी उनके कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, एंड देन यू सी यू नो द ऑपरेशंस इन द सिटी, तो लगता ये है कि हम टैक्स नहीं दे रहे। अब वो डिस्ट्रस्ट है, मतलब एक चीज़ होती है ना विलिंगनेस, और एक चीज़ होती है एबिलिटी। आई थिंक एबिलिटी तो लोगों के पास, ये तो बात नहीं हो सकती ना कि आप लैंड क्रूजर्स चला रहे हैं बट आप कह रहे हैं मैं टैक्स नहीं दे सकता, ठीक है ना आप। पर इसमें जो ना, आई थिंक कि अगेन मैं लंगड़ाल साहब के साथ मैंने डील किया है, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, और जो वो जिस तरीके से हो सकता है, ही इज़ अ बिट टफ, ही इज़ अ वेरी टफ मैन, मगर
जो इंटेलिजेंसिया है ना उनका, आई थिंक अगर वो कंटिन्यू करेंगे ना तो वो उन सारे जो स्ट्रिंग्स है ना उनको कनेक्ट करके शायद वो एक सिस्टम ऐसा ला पाएंगे जिससे कि वो उस आदमी से जिसको टैक्स देना है ना उसे टैक्स दिलवा लेंगे। मेरा ये कैमरामैन, ये मेरा डीओपी बैठा हुआ है, यंग किड 22-23, इसको सिर्फ ब्रीफली समझाएं, फिर हम केई पे वापस आएंगे. What is the significance of paying a tax from whatever you're earning, and how will this contribute to our national exchequer for his and आने वाली generations? बेटा जब आप सड़क पे चलते हैं ना तो सड़क के ऊपर सड़क बनती है, उस सड़क के अंदर गारा मिट्टी कंक्रीट, उस पर लाइनें लग आप देखते हैं लोग बैठे होते हैं जो कि उसको पेंट कर रहे होते हैं, रोड रोलर चलेगा उसमें डीजल लगेगा, ये खर्चा है, इस खर्चे के पैसे किसी ने देने। अगर गवर्नमेंट कोई बहुत रिच हो उसके कोई बहुत रिसोर्सेज हो तो वो कर देगी, लेकिन अगर वो ये नहीं देगी ना तो जो लोग उसको इस्तेमाल करें ना उसको उनके पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर हम बैठे हैं, अली सलमान साहब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बिजली ना इसके पैसे देने, ये कैमरा है इसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी जो पे की होगी, ये कॉफ़ी पिलाई है आपने, पानी की बोतल रखी है। अगर ये बिज़नेस पूरे पैसे रिकवर नहीं कर पा रहा, उसको फ़ंड होना है कहीं से, तो इसको फ़ंड करने के लिए अगर डायरेक्ट टैक्स नहीं है ना तो फिर हमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन करनी पड़ेगी। और वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन यही होगी कि बिजली का रेट कैपेसिटी है 16 रुपये की, लोगों को कह दें गवर्नमेंट के पास। अब हम उस डिबेट में जाएं कि गवर्नमेंट को एफिशिएंट होना चाहिए, गवर्नमेंट की कॉस्ट कम होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल ऐसा है, बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या लोग पहले टैक्स देंगे या पहले गवर्नमेंट ठीक होगी फिर टैक्स देंगे। तो मेरा मानना यही है कि हमारे अंदर भी डिज़ायर टू पे टैक्स नहीं है, आदत बन गई है। और अगर सब लोग एक निज़ाम के तहत, थोड़ी तल्ख बातें मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप देखें ना कि ट्यूशन की जो फ़ीस होती है ना टीचर्स की, वो भी वो कैश में लेते हैं। उनके रिटर्न्स अगर कोई निकलवा के देख सकता है तो वो देखे कि उन्होंने कितना डिक्लेयर किया है। तो जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, क्या वो अच्छा ऐसा नहीं है कि ये टैक्स अवॉइडेंस नहीं है, ये अवॉइडेंस ही होती है कि आपने एक बच्चे को पढ़ाया, आप रोज़ाना गए, आपने गाड़ी का ख़र्चा डाला, पेट्रोल डाला और आपने कहा मुझे 100 रुपये मिले थे, मेरा 25 का खर्चा हुआ, 75 रुपये बचते, 75 के ऊपर 25% या 30% जो स्लैब है मुझे टैक्स देना है, ये अलाउड है। अगर ऑर्डिनेंस के अंदर कोई ऐसी क्लॉजेज़ हैं जिनसे आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है और आप उसको इन्वोक करते हैं, ये अलाउड है। मगर ये नहीं हो सकता कि आप कैश लेके उसको दिखाएं ना रिटर्न में, और आप रिटर्न जमा कराएं तो आप उसमें लिखें आई सॉलिमली अफर्म दैट दिस इज़ माई टैक्स लायबिलिटी, दिस इज़ माई इनकम। वो इनकम जो है ना वो नहीं होती जो आपने रिसीव की होती, क्योंकि जो कैश लिया होता है ना वो डिस्क्लोज ही नहीं होता। तो ये चलें, टैक्स डिबेट हो गई ये और शब्बर साहब इसके ऊपर आप हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत मेरे इस ख्याल पे में दो बहुत क्विकली, बेहतरीन आपने भी गवर्नमेंट की बात की, मनोज भाई, गवर्नमेंट का काम तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देना है ना, उनका काम इम्प्लीमेंटेशन में जाना, गवर्नेंस में जाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, क्या एफबीआर या टैक्स कैन बी आउटसोर्स टू प्राइवेट सेक्टर विद इंसेंटिव्स और फिर वो लग जाएं पीछे जैसे बदमाश रिकवरियाँ करते हैं? देखिए मेरे ख्याल में शायद बाहर ऐसा होता है। और हम जब कहीं शॉपिंग बाहर की, यूके में तो उन्होंने अब बंद कर दिया, वो वैट बंद कर दिया, हाँ जी, लेकिन वो सब प्राइवेट था, वो कोई गवर्नमेंट नहीं था। अब चक्कर यही है कि क्योंकि आपके पास आई एम श्योर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे जिनकी के रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगी, दे एंजॉय वॉट एवर दे एंजॉय। सो ये भी एक पैराडाइम शिफ्ट है और आई होप कि कोई ऐसा पाकिस्तान में निज़ाम आए जिसमें कि वैल्यू फॉर मनी। मैं के इलेक्ट्रिक की आपको जैसे छोटी सी मिसाल देता हूँ, इसी तरीके से कि जब के इलेक्ट्रिक में हमने काम शुरू किया तो हमने देखा यार हम बिल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं खुद से, और मुझे नंबर याद हैं वो वाले, इस बात के बावजूद कि मैं जो भी एज है, 180 मिलियन रुपए हम खर्च करते थे फॉर बिल डिस्ट्रीब्यूशन साल के। हमने उस वक्त जो कोरियर कंपनी थी हमने उसको बुलाया और हमने कहा यार ये बिल जो है ना ये बांटने, इट वॉज डन इन 60 मिलियन रुपीज़। वो अच्छा, और हमने किया यही, हमने उनसे कहा कि देखें ये जो है ना मोहल्ला नंबर 11 गली नंबर 3
घर नंबर फलाना ये इसको पता है, आप इसको रख लें अपने पास। और उन्होंने हमारे बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स को रखा एंड द कॉस्ट वाज रिड्यूस्ड। तो स्मार्ट मूव। और इस तरह के बहुत सारे काम किए गवर्नमेंट में भी ना। मगर जो प्रॉब्लम आएगी शायद वो यही आएगी कि जब आप लोगों को ये कहेंगे कि नाउ यू विल नॉट बी अ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यू विल बिकम एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी जो कि आपकी रेवेन्यू बेस्ड कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको बोनस भी देगी, मगर अगर कलेक्शन नहीं हुई तो आपको रेप्रिमांड भी करेगी। जो ये है ना, ये वाला काम करने में वक्त लगेगा, लेकिन ये होना चाहिए। स्वी गैस के 60% कस्टमर्स जो हैं वो अवाम है, 40% इंडस्ट्री है। दैट्स वेयर द मेजर चंक कम्स इन। आपके मेजॉरिटी कौन है और इंडस्ट्री क्या है और स्प्लिट क्या था? देखिए केई के अंदर जो ना इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इंडस्ट्री वाज अराउंड बिटवीन 35 एंड 40%। राइट। इनिशियली इट वाज 45%, फिर ये काफ़ी कैप्टिव हो गए और सोलर पे चले गए लोग, थोड़ी कम हो गई थी। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट इज़ वेरी लो। अगर मैं नंबर ऑफ कस्टमर की बात करूँ तो मेरे ख्याल में कोई 40-45 हज़ार इंडस्ट्री है, और जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं वो प्रॉबली कोई 3.1-3.2 मिलियन होंगे। 4-5 लाख जो है वो कमर्शियल कस्टमर्स थे। तो इंडस्ट्री नंबर्स में बहुत छोटी है, लेकिन कंट्रीब्यूट करती है। जब बिलिंग पाई देखते हैं, क्योंकि जो 3.1 या 3.2 मिलियन रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं ना, उसमें से तकरीबन 40-50% वो लोग हैं जो कि लाइफलाइन या 300 यूनिट से कम वाले हैं, उनका बिल बहुत कम होता है। मनोज भाई, ये आपने बता दिया कि जो आपके एक सर्टेन लोग हैं जो 200 यूनिट्स और बिलो यूज़ करें, तो वो थेफ्ट वाली जो कैटेगरी वो कहाँ पे फॉल करती है फिर? देखिए ये फॉल करती है इन स्पेसिफिक एरिया। ओके। They can be people who are consuming 200 units. They can be people who are consuming 400 units. इसलिए कि अगर आप मिसाल के तौर पे कि एक स्पेसिफिक एरिया में आपकी एबिलिटी टू डिसकनेक्ट, एंड इफ इवन यू हैव डिसकनेक्टेड, द एबिलिटी टू कंटिन्यू दैट एरिया टू बी डिसकनेक्टेड और दैट कस्टमर टू बी डिसकनेक्टेड वो लिमिटेड है। अब वहाँ पे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, वो सारे के सारे बिजली जो है वो चोरी कर रहे होंगे। और ये भी होता है कि लोग जो है ना, जब क्योंकि अब लोगों को बड़ी अवेयरनेस आ गई है, तो वो क्या करते हैं कि वो ना 150 यूनिट तक 200 यूनिट तक मीटर पे रहते हैं। जब उनको पता होता है कि जैसे ही ऊपर गुजर रहे हैं, फिर वो कुंडे डाल देते हैं ताकि वो 200 यूनिट से नीचे रहें। उसमें होता ये है कि जब कई बिल बनाता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली 200 से 300 या 400 पे चले जाते हैं। 200 यूनिट का अली मतलब जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स सो लो, आई डोंट नो इफ़ यू कैन ये समझाएं लोगों को 200 यूनिट्स क्या है। देखिए मैं आपको इस तरह समझाता और हूँ इसका कि प्रेसिडेंस कैसे बना, और ये प्रेसिडेंस जो है ना, ये बहुत ही कोई वीक है। और मुझे ये पता है कि गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की थी आईएमएफ को ये समझाने की कि 200 यूनिट बहुत कम है, इसको बढ़ाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये 200 यूनिट पे ही आपको सब्सिडी, मतलब आपको उसको रेट कम रखना है। 200 से ऊपर अगर जाएंगे तो आपको टैरिफ इंक्रीज़ करना है। क्योंकि आप एक प्रोग्राम में हैं तो आपको बात माननी पड़ती है। और इस वजह से आप ये समझ लें कि हम अगर 500 गज के घर में रह रहे हैं ना, और अगर 4 लोग रह रहे हैं और वो 1 या 2 एसी चलाएं, तो उस घर का बिल कम से कम भी 600-700 यूनिट 800 यूनिट आएगा फॉर द मंथ। मतलब ये बहुत कंट्रोल के साथ जो माशाल्लाह हमारे यहाँ जो घर हैं जो खुल के चल रहे होते हैं, तो आपको 500 गज के घर में 1,500 हज़ार यूनिट का बिल आता है। अब आप सोचें कि आप एक घर है जिसमें आप कह रहे हैं कि यार यू हैव टू कीप इट बिलो 200 का मतलब है कि 10 किलो वाट, बल्कि 10 भी नहीं, 10 दिन के अंदर आप जलाएंगे 66 किलो वाट, तभी आप महीने के तकरीबन 200 यूनिट करेंगे। तो एक दिन में 6 किलोवाट आप पूरे 24 घंटे चलाते रहेंगे। 6 किलोवाट, ये बल्ब, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये इससे कहीं ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बहुत ही बेचारे जो है ना, ये वो हमारा तबका है जो पॉवर्टी लाइन इस पे भी आएंगे, बिकॉज आई नो हाउ इमोशनली यू आर अटैच्ड एंड हाउ सैड यू गेट समटाइम्स। बट चले शायद अब आप, और मैं वो तो मसला यही है, ये हमारा भी प्रॉब्लम है, लोगों का भी प्रॉब्लम है। लोगों का प्रॉब्लम इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि वो कोई
जाके रेस्टोरेंट्स में खाने खा रहे हैं और उनको बिजली दे नहीं देंगे। मतलब उस पे आएंगे बिकॉज वो तो एक मुझे मुझे आपकी वो मैंने इमोशनल साइड देखी है। आई वांट पीपल टू एक्सप्लोर दैट टुगेदर विद अस। थेफ्ट में ये कैसे हो सकता है कि, बल्कि उससे पहले वापस आते हैं, अगर इस डिजिटल मीटरिंग ए सोल्यूशन फॉर दिस, या वो भी बाईपास हो जाएगा? कि इसके लिए भी बहुत जो है मैं समझता Prepaid हूँ कि meter, sorry. प्रीपेड मीटर जो है ना वो हो सकता है, मगर उसके लिए भी ना बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पॉलिसी के अंदर पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। और हमने बहुत सारी चीज़ें, यानी जब मैं था तो हमने लिख के भेजी थी कि ये अगर करें तो हो सकता है, पेपर्स बनाए थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप आज की तारीख में ना मीटर लगाते हैं प्रेमिसेस के ऊपर। राइट। अब हालांकि पाकिस्तान में आज भी और आज से 25 साल पहले भी क्या पीटीसीएल का मीटर आपके घर पे लगा होता है? कहीं एक्सचेंज में लगा होता है। करेक्ट। और मुझे ये याद है कि उस वक्त इस तरह चोरी हुआ करती थी कि बराबर वाले के टेलीफोन कुंडा लाइन लगा से के। लगे, और उसको कुछ पता होता था कि टक 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 उठाता, कभी लोगों को पता लगता था कि अंकल आई हमारे एम सॉरी, मैं आज एडमिट कर रहा हूँ, ये नहीं बताऊंगा कौन से अंकल, लाहौर वाले, कराची वाले, मैंने आपका बहुत फोन यूज किया है। तो लेकिन बिजली में ना दैट मीटर हैज टू बी ऑन द प्रेमिसेस। दैट्स अ मैंडेटरी रेगुलेटरी। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ओके। अब मसला ये है कि जब आप एक आदमी के दरवाजे तक एक तार ले गए और उसमें करंट है हाँ। और वो मीटर लग गया, और वो चाहे प्रीपेड हो चाहे या वो postpaid हो। पोस्टपेड हो, वो मीटर बंद होगा ना तो उस आदमी को सिर्फ 2 फुट का एक तार लगाना है जो कि उस मीटर को बाईपास करेगा। ओके। अच्छा, एक और बात ये है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और आई होप हर आदमी कहता है प्रीपेड मीटर। देखिए, जो इस वक्त भी मेरे ख्याल से सबसे सस्ता प्रीपेड मीटर होगा, या आज से जो मेरे जब तक मैंने सुना था कोई 24-25 हज़ार से कम का नहीं है, और वो भी मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो हम जिसको इस्तेमाल करेंगे वो और महंगा होगा। बिल्कुल ठीक है। ये जिन लोगों की जो नॉन पेमेंट हो रही है ना, इनका बिल होता होगा 4,000, 5,000, 8,000, 7,000। तो आप उनको मीटर किसकी कॉस्ट पे लगा के देंगे? अपनी कॉस्ट पे लगा के देंगे या उनकी कॉस्ट पे लगा के देंगे? अगर आज के कानून भी ये है कि अगर वो मीटर टेम्पर हुआ तो अब कस्टमर को पैसे देने। अब अगर उन्होंने टेम्पर कर दिया, जो करंट बिल नहीं पे कर पा रहा, वो बिल्कुल आपसे वो कहाँ से देगा? मीटर कहाँ से लगाएगा? चले पहला मीटर आपने बात करके अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में लेकर के लगा दिया। आज एग्जिस्टिंग जो मीटर है ना, वो होता है, कोई आप समझ लें हम उससे 100 रुपये पर मंथ लेते हैं, कोई 2,000 2,500 रुपये का मीटर जो है ना, वो जो सिंगल फेज मीटर होता है वो लगाया जाता है। तो वो अगर वो तोड़ भी देना तो दूसरा लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वाला मीटर, अच्छा, इसके लिए फिर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। हमारे अगर में छोड़े उस पे नहीं जाते वो। मैं आई वांट आम लोगों को समझ जाए, तो लोगों को फिर बताएं सोल्यूशन है कोई इसका? ये चोरी, अभी पे चोरी पे आता है, फिर पीछे जाएंगे। देखिए, सोल्यूशन इसका जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली 2-3 है, मगर मुश्किल है सारे। एक, शायद बिजली और सस्ती होनी चाहिए। एंड अगेन, कैसे सस्ती करें? आप तो अभी भी इनको सस्ती बिजली दे रहे हैं, तो और कैसे कितनी सस्ती कर दें? अगर सस्ती इनको करेंगे तो क्या आपके पास कैपेसिटी है कि आप वो पैसा कहीं से फंड करें? और जब टैक्स नहीं दे रहे लोग, या टैक्स की कलेक्शन कम है, तो फिर गवर्नमेंट को क्या बोरो करके सब्सिडी देनी पड़ेगी? उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी, सो मुश्किल काम है। एक और चीज़ है जिसको मैं कहूँगा कि लॉलेसनेस इन दोज एरियाज़, वो एक एलिमेंट ज़रूर है। क्योंकि लोग बड़े, आप अगर मतलब आप कई सालों से कहें, वो आपको लेके जाएंगे और आप देखे जाकर के जो ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ जिस तरह कुंडे लगे होते हैं ना, वो बबंगे दुहल लगे होते हैं। कोई ना किसी को कोई शर्म होती है, आप काट दें। जब आप ज़्यादा फोर्स लेके जाते हैं आप तो जाएंगे, आप थोड़ी देर फिर लग जाएगा। हाँ, तो जब आपने, अगर आप फोर्स लेके गए, आपने काट दिया, काट लो, जब से आप जाएंगे वो दोबारा लग जाएगा। मुझे याद है आपने उस दिन बताया था कि काट दो तो आप उस पर केस करो, तो क्या मतलब 5 लाख लोगों पे केस करो तो फॉलो इस वक्त कौन भी करे? कराची शहर में, और ये आप कराची के इलेक्ट्रिक से नंबर ज़रूर पूछ लें, लेकिन 5 से 6 लाख कुंडे कम से कम होंगे। कितने कुंडे उतारेंगे, कितने केसेस बनाएंगे, ये थोड़ा ऑन अ बस लाइटर नोट, तुम कितने कुंडे नहीं, उतारोगे हर घर हर से घर से कुंडा निकले। अच्छा, बिल्कुल तो ऐसे। चलें इसका। तो अब फिर ये बताएं कि जो केई एज एन इंस्टीट्यूशन इज लूजिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस, तो इज देयर एनी रिकवरी पॉसिबिलिटी? देखिए, बात यह है कि दिस इज समथिंग विच इज़ स्टिल सब्जुडिस भी है, और बात भी मुझे पता है कि कई गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी कर रही है इन टर्म्स टू फाइंड अ मिड वे इन टर्म्स ऑफ टैरिफ। देखिए, नॉट ओनली के इलेक्ट्रिक, मैं के इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा, मैं बात करता हूँ पूरे पाकिस्तान की।
और आपको प्राइवेटाइजेशन भी करनी है। अब आप मिसाल के तौर पे कल हैदराबाद इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज करते हैं, नाउ यू कैन नॉट अलाउ द यूटिलिटी टू चूज द कस्टमर। करेक्ट, आपको ना सब लोगों को बिजली देनी है, करेक्ट, तो चॉइस ऑफ कस्टमर नहीं है आपके पास। बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स में आप एक कस्टमर आता है आपके पास, कहता है मुझे लोन चाहिए, आप उससे सारी डिटेल्स लेते हैं। अगर उसको पर्सनल लोन होता है तो भी आप उसकी पेमेंट के, उसका डेट बर्डन, अगर वो गाड़ी का लोन होता है तो गाड़ी का 30 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, गाड़ी आप बैंक के नाम पर होगी, हाउस लोन होगा तो मॉर्गेज होगा, रजिस्टर्ड होगा, मतलब सब कुछ हो सकता है। आप ना बैंक्स का डिफ़ॉल्ट रेट उठा के देखिए, बहुत ही कम बैंक्स होंगे जिनका डिफ़ॉल्ट रेट 1-1.5% से कम नेग्लिजिबल है, होगा। बिल्कुल ठीक है। एक नॉर्मल बैंक जो काम करेगा वो को 3-3.5% का डिफ़ॉल्ट रेट उसका होता है। राइट, और हम जब मैं ऑडिट करता था और बैंकिंग करता था तो हमें एक रिस्क वाले ने यही समझाया था कि देयर इज़ अ रिस्क व्हेन यू गिव क्रेडिट, इफ़ यू डोंट वांट द क्रेडिट रिस्क डोंट गिव द क्रेडिट। ये नहीं, क्रेडिट ज़ीरो नहीं हो सकता। तो मतलब बिजली पे फिर आप अब बिजली आप सप्लाई कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे तो आप कस्टमर को चूज कर रहे हैं। ऐसे ही है यहाँ तो आप अप्लाई करें, वो आपसे कहें आपकी बैंक स्टेटमेंट दीजिए, आपकी सैलरी स्लिप दीजिए, आप बैंक लेटर ला के दें, आप और उसी NIC के ऊपर वैसे ही पता लग जाएगा कि आपके पास कितना डेट करेक्ट, बर्डन है, करेक्ट, कितनी आप पेमेंट्स कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, कितने अकाउंट सब आ जाएगा। वहाँ डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे आपने देनी है, अली सलमान साहब के घर तक एक तार भी आ रहा है, मीटर भी आपको लगेगा, बिजली बंद, मैं नहीं आपकी होगी। बिजली काट ज़रूर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इस पूरे इलाके को जहाँ पे मेरे लॉसेस 50% है मैं बिजली नहीं दूंगा। आपको रेगुलेटर ठोक देगा। और नहीं, जो बाकी 50 दे रहे हैं उनका भी तो कोई कसूर नहीं ना। मगर मैं ये कहूँ अरे, ना, अब बिल्कुल देखिए, ठीक। आप जब ये बात होती थी ना और हमारे साथ बैंक्स भी होते थे, तो मैं उनसे कहता यार एक बात बताओ, तुम्हारी, मैं किसी इलाके का नाम नहीं लेना चाहता, उनकी किसी स्पेसिफिक एरिया में इसमें कितनी ब्रांचें हैं तुम्हारी? तो कहते नहीं है। मैंने कहा, क्यों नहीं है? लोग रहते हैं यार, बैंकिंग करते हैं, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। तुम्हारा वारा नहीं खाता, बट वी सप्लाई पावर देयर, वी कैन नॉट स्टॉप, वी डू लोड शेडिंग, Obliged to वी आर supply. ऑब्लाइज्ड। एक एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट ये है सर, क्या जहाँ चोरी होती है मैं वहाँ रेट बढ़ा सकता हूँ? नहीं बढ़ा सकता। तो मैं कस्टमर भी चूज़ नहीं कर सकता, एरिया भी चूज़ नहीं कर सकता, पैसे भी नहीं बढ़ा सकता। तो इसका मतलब है इस ऑपरेशंस के पूरा जो ऑपरेशन है ना, इसकी एक कॉस्ट है। अगर आप किसी भी इदारे को एक टैरिफ दे रहे हैं कि तुम, हेलो, तुम्हारी कॉस्ट मैं डिटरमाइन करूँगा, तुम खुद नहीं कर सकते, बिलिंग तुम उस पर करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। वाह वाह, मुझे आपकी वो 39 वाली और 32 वाली और 29 वाली शहजाद की डिबेट याद आ रही है, जियो वाली। हाँ, ऐसे ही था। ठीक है ना, मैं 39 से ज़्यादा बिल कर सकता हूँ, या ना मैं लोगों को 32 रुपये से ज़्यादा बिल कर सकता हूँ। करेक्ट, ये 6-7 रुपये आप मुझे देंगे। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये जो कॉस्ट इनकर हो रही है, और जब आगे प्राइवेटाइजेशन भी करेंगे, ये कॉस्ट को कोई और फंड करेगा, करेक्ट, तो ये मुश्किल बात है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आज आप मिसाल के तौर पे हैदराबाद को प्राइवेटाइज़ करते हैं और आपको ये पता है कि हैदराबाद के लॉसेस गालिबन 40% हैं, रिकवरी शायद 60% है, तो आप उसको बोलें देखो हम आज तुम्हें ना जो टैरिफ देंगे ना उसमें हम इन दोनों फैक्ट्स को फिल्टर इन कर देंगे, मगर 5 साल में तुम्हें इस 40 को 20 करना है और इस 60 को 80 करना है। इस पर डिबेट होनी चाहिए, 80 नहीं होगा 85 होगा, 85 होगा 90 होगा, 92 होगा। और इसमें बहुत सारा ना पढ़ा लिखा कॉन्वर्सेशन हो सकता है कि यार तुम्हें 80 देंगे, मगर अगर 90 करोगे ना तो 5% रिटेन कर लेना और 5 हमें दे देना, ताकि उसके पास ये इंसेंटिव भी हो कि अगर वो ज़्यादा कर सकता है ना तो वो ज़्यादा करे, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ जाएगी। आप ये बात कर सकते हैं कि देखो यार, अगर तुम्हारी अर्निंग्स जो है ना वो इससे ज़्यादा बढ़ी ना तो हम इतना कैप्चर कर लेंगे। ये देखिए, और मैं आई फुली सपोर्ट ऑल दीज थिंग्स। इसकी वजह ये है अली साहब कि ना ये बिज़नेस जो है ना यार, ये है यूटिलिटी का बिज़नेस। ये ना, इट्स नॉट एन आइसक्रीम बिज़नेस, इट्स नॉट अ शू बिज़नेस कि आप कहें ये जूता ख़रीदना है तो पैसे दो, नहीं ख़रीदना तो गेट। अच्छा, वो सवाल पूछते हैं जो थोड़े से आपको तंग भी तो करे ना। आपको एक और भी परसेप्शन थी, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, कि हेटर्स से
कि मुनिस भाई ने जान के जनरेशन ऐसी रखी और बिजली में मसाइल रखे कि शेयर वैल्यू ना बढ़ सके ताकि किसी का मतलब कोई नया प्राइवेटाइजेशन में ना आ सके, क्या ये सच है? देखिए ये आई लाइक द स्माइल ऑन योर फेस। बात ये है कि ना ये सारी जो यूटिलिटी की चीज़ें होती हैं ना, मतलब अगर के इलेक्ट्रिक के अंदर सिर्फ मोनिस अलवी ने ये डिसाइड करना था कि मैंने इंटरकनेक्शन बनाना है और मैंने 900 मेगावाट का प्लांट लगाना है और एक 13 मेंबर बोर्ड, नेपरा, बाकी सारे लोग, वो सब इतने खुदा न खास्ता, चूँकि ऐसा है नहीं कि वो नाअहल थे कि वो इस बात को समझ नहीं सकते थे कि ये कोई इस पूरे प्लान Intentional कोई फाइली है, तो बड़े दुख की बात है। क्योंकि आई डोंट थिंक कि आप अगर हमारा एग्जिस्टिंग बोर्ड भी देखेंगे, पुराना बोर्ड भी देखेंगे, उसमें बहुत कॉम्पिटेंट लोग थे, उसमें पावर सेक्टर के लोग थे और नेपरा जो है ना वो इस सारी चीज़ को बहुत गौर से देखता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई प्लान लेके जाएं जो किसी ऐसी चीज़ पे बेस करता हो कि जो कि अनड्यू, मतलब मिसाल के तौर पे हमने प्लांट लगाया तो हमने एक कंपटीशन कराया, उस कंपटीशन में एक आदमी जीता, हमने उसको दे दिया। वो कंपटीशन का जो इवैल्यूएशन थी वो भी नेपरा के गाइडेंस के हिसाब से थी, उसका जो लोग कर रहे थे वो भी नेपरा ने अप्रूव किए थे। जो एंड इट इज ऑल ऑन द वेबसाइट ऑफ नेपरा एज वेल, टैरिफ की उसके सब के लिए यूटिलिटी की जो अच्छी बात है कि चाहे टैरिफ हो, चाहे जनरेशन की लाइसेंसेस हो, चाहे सबमिशंस हो, सारी चीज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट हो। ठीक हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये इट हैज़ टू बी, फिर कोई इसको ना वो करे कि यू हैव आंसर्ड इट, छोड़ दें। ये दैट्स द अदर थिंग वाज कि जितनी कोस्टल बेल्ट के ऊपर एक आपका एबीसी प्रोग्राम था, हाँ हमने किया है ना, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि वो कॉपर को रिप्लेस किया मुनिस भाई ने किसी और मटेरियल एल्युमिनियम के साथ ऊपर गैल्वेनाइज्ड और व्हाटएवर, और वो जो कॉपर है ना वो मुनिस भाई के जो दुश्मन है उन्होंने कि छुपा दिया है और वो उसमें जो आपकी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स में कहीं नज़र नहीं आता। ये नज़र आता है, पहली बात तो ये उसमें नज़र आता है। दूसरी बात ये कि ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया और से जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये बात एक आध दफ़ा पूछी वो थी। तीसरा सवाल है। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा था, मैंने कहा कि जहाँ ये सब काम होते हैं ना, अगर ऐसे काम कहीं होते हैं वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ओनर जो है ना वो खुद बैठा होता है। करेक्ट। वो कॉपर जब उतरता है ना तो मुझे आज की तारीख में ये पता भी नहीं है कि आज कहाँ हो रहा होगा। पहली बात ये भी ज़रा प्लीज़ आप जो पावर सेक्टर के लोग हैं ना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में कॉपर को उतार के रिप्लेस करने का काम सबसे आखिर में के इलेक्ट्रिक ने किया। बाकी डिस्कोर्स में ये बहुत पहले हो चुका है। इसकी वजह ये है, ये वही वाली बात है कि कल ये कोई ये कहे कि यार आपने ना यूरोपियन गाड़ियाँ ख़त्म करके ना और जापानीज़ गाड़ियाँ ले आया। वो बहुत अच्छी गाड़ियाँ थी, उनका वो बहुत सॉलिड थी, ये तो हल्की हैं, टीन की गाड़ियाँ हैं, इनका एक्सीडेंट होता है तो ये तो ख़त्म हो जाती हैं। वो तो देखिए उनका बम्पर भी नहीं हिलता था। आपने पैसे बनाए और आप सस्ती गाड़ी लेकर के यार आपने महंगी गाड़ी को, फिर अब जापानीज़ गाड़ियाँ ख़त्म होकर चाइनीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये भी साजिश का हिस्सा होना चाहिए। आज दुनिया में BYD शायद टेस्ला से ज़्यादा बिकना शुरू हो चुकी है, US वगैरह में भी। तो पाकिस्तान में अभी भी बहुत कम पेनिट्रेशन है। ऐसे ही है। तो ये टेक्नोलॉजी है, इट डज़ द सेम थिंग। ड्यूरेबिलिटी, हाँ हो सकता है कॉपर की ड्यूरेबिलिटी हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मतलब देयर हैज टू बी वैल्यू फॉर मनी ना, कि एक चीज़ है वो 100 रुपए की है। ऑनेस्टली वो तो हम चैलेंज ही नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं वो कॉपर का आपको पता नहीं वो किधर गया था। वो मैं ही कह रहा हूँ कि जब कॉपर उतर रहा होगा कहीं से तो अकाउंट फॉर हो रहा होगा कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूँ कि एक तो हमारी जो सिक्योरिटी है ना, वो उसकी सारी ये जिम्मेदारी थी। एंड आवर सिक्योरिटी इज फुल ऑफ एक्स एस्टैब्लिशमेंट गाइस, नो सिविलियंस आर देयर। तो मैं उनको भी एस्टैब्लिश को भी कहा, मैंने कहा अगर कोई कर रहा है ना तो आपके लोग ही होंगे, क्योंकि वो जो आपके पास से हमारे पास आया है, अब वो अगर उसने मतलब काम ऐसा करना पड़ेगा कि कॉपर उतरा मगर वो कहीं स्टोर हो गया विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, फिर वो बिका, फिर उसका कैश आया, फिर वो कैश हैंडल हुआ और वो पता फिर मिस हैंडल हुआ, मतलब वो हैंडल मिस हैंडल। हाँ तो मैंने कहा ये ना अगर काम हो रहा होता अच्छा ना, चले और दूसरी बात इस बात के बावजूद कि जब हम हमारी स्क्रैप सेल्स देखेंगे ना
तो उसमें आपको कॉपर की सेल नज़र आएगी। ठीक हो गया। लॉट्स होती हैं, वो रखी होती हैं, लोग आते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, एक बिड देते हैं। वो बिड भी ये नहीं होती कि वो उसमें एक एस्टिमेटेड वैल्यू की बेसिस पे बिड होती है, वेट। जब वो वेट एक्चुअल होता है ना, वो बिड भी उसके हिसाब से एडजस्ट होती है। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने रब्बिल आलमीन, बहुत रोबस्ट सिस्टम है। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूर हो सकता है किसी कोई हमारा स्पेसिफिक सेट ऑफ के इलेक्ट्रिक का कोई एम्प्लॉई, इनको मौका लग गया और उन्होंने कहीं से कॉपर उतारी और वो 50 किलो थी, और उन्होंने उस 50 में से 10 किलो कहीं अपनी दूसरी गाड़ी में रखी और 40 किलो जमा करा दी। ये आप जब ये बहुत फाइन डिटेल में चले गए, चार्टर्ड अकाउंट की हैड वापस पहनाते हैं। फिर मैंने आपको लेके जाना है इस्लामाबाद के। नाउ वी हैव टू सिस्टम्स, पॉलिटिकल एंड SIFC एंड ब्यूरोक्रेसी। ये भी टाइम है 10-15 मिनट, अभी आपको नहीं जाने दूंगा। तो why do you think a CEO for an institution which is so technical, be a chartered accountant or an MBA and not an engineer, or an engineer who should have a chartered accountancy, आपका क्या ख्याल है रिफाइनरीज पे, यूटिलिटीज पे? देखिए, एक्चुअली एक तो बात ये है कि ना, एट दिस लेवल व्हेन यू स्पेंड सो मच टाइम इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, आपको ना थोड़ा मेच्योर होना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ योर एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस राइट। एंड प्रोवाइड सोल्यूशन। ठीक है ना? तो वेदर यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एन MBA और एन इंजीनियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दैट एबिलिटी टू आस्क द राइट क्वेश्चन इट हैज़ टू बी देयर। और जो दूसरी बात है वो ये है कि इफ़ फॉर एग्जांपल केई को अगर मैं देखिए, केई एक टेक्निकल कंपनी है, मगर अगर मैं 18 साल का पीरियड देखूँ ना, तो देयर वर इश्यूज विच वर कमर्शियल, विच वर फाइनेंशियल। आपको प्रोजेक्ट्स करने थे, आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग चाहिए थी, आपको गवर्नमेंट के साथ भी कुछ एग्रीमेंट्स करने थे। तो कंपनी का इशू ये नहीं था कि बिन कासिम ख़राब प्लांट है, करेक्ट। या बिन कासिम को आप बंद करा के नया प्लांट। दिस इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम फॉर के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम ये था कि अगर फॉर एग्जांपल आपके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं वो X हैं और इसको इम्प्रूव करके Y पर आना है, तो इसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, कितना कैपेक्स होगा, उससे क्या रिजल्ट्स आएंगे, उसकी फंडिंग कैसे होगी, कौन करेगा। अगर आपका PPA नहीं है तो आप कैसे डील करेंगे, आपका टैरिफ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टैरिफ नेपरा। तो अगर ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं ना, और यही का सिर्फ इशू ये रह जाता है ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, देन अ टेक्निकल गाय इट्स अ टेक्निकल पर्सन, अ गुड टेक्निकल पर्सन इंजीनियर विद एन MBA डिग्री। एंड अगेन हमारे पास था भी। और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई ऐसा आदमी होता जिसको ये सारे इश्यूज पता होते और वो इंजीनियर भी होता, ही शुड बी। अब हम एक सवाल पूछ के हम मोनस भाई को कराची लेकर आएंगे, क्योंकि सन ऑफ द सॉइल हैं वो। इनकी कराची से मोहब्बत भी पता है, इनकी आर्ट और लिटरेचर से मोहब्बत भी पता है। वो हमारे आखिर है। यू हैड बीन इंटरेक्टिंग विद द अथॉरिटीज़, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल अथॉरिटीज़, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट। मैं इस्लामाबाद से पिछले 2-3 साल से डील कर रहा हूँ। SIFC एक हमारा इंस्टीट्यूशन बना जिसको वन विंडो ऑपरेशन कहा गया। ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व इफ़ यू कम थ्रू दिस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। तो व्हेन आई डेल्ट विद ब्यूरोक्रेसी, आई रियलाइज कि वो अजीब सा मुझे लगता है। यहाँ जाता कहता उथू करा लो, उधर जाता था तो वो इनको बुला के जब डांट पड़ती थी तो काम मैं बीच में लटक जाता था। वर दीज चैलेंजेस दैट यू ऑल्सो फेस्ड, या you sailed through all of this? नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये उन्हीं रिफॉर्म्स का एक है कि जिसमें कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इम्प्रूव होना चाहिए। अ, और इसके अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं समझता हूँ कि मेरा फोर्टे था वो ये था कि मैं ये बात करता था कि जो बात करो ना वो इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि सामने वाला ना आपको उस पर चैलेंज ना कर सके, और वो चैलेंज करे भी तो वो फिर ऐसा चैलेंज होगा जो कि बहुत जल्दी डाई डाउन हो जाएगा। हमने गवर्नमेंट के साथ PPA किया। हमें PPA करने में और कुछ एग्रीमेंट्स करने में 5 साल लगे। हमने 2019 में पहली मीटिंग असद उमर साहब के साथ की थी। हमने डॉक्यूमेंट्स साइन किया 2024 में। वाओ। 3 गवर्नमेंट चेंज हो गई बीच में, बट अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने लोगों को भी ये कहता, मैं कहता देखो यार, जब आप बबलिंग करोगे ना बात में, तो कोई आदमी ठीक। कहेगा कि ना यार
आप लोग गलत बात कर रहे थे। अगर आपने असद उमर साहब को भी एक बात कही, फिर उसके बाद एक दूसरा मिनिस्टर आया, आपने उसको भी वही बात कही, किसी ने कोई सवाल ज़रूर किया, डिफरेंट सेक्रेटरीज आए बीच में, और हम उनको यही कहते हैं कि सर ये जो आप करने को कह रहे हैं, इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज यू नो व्हाट वी वर आस्किंग वॉट नॉट समथिंग जो कि बड़ी आसानी से किसी को मिल सकती थी, लेकिन हम उनको ये समझाते थे कि अगर ये नहीं करेंगे ना तो हम चलाएंगे कैसे काम। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि ये चले जाएंगे, कल को कोई उनकी जगह आया वो भी यही बात कर रहा है, तो भाई वो भी तो यही कह रहे थे, तो फर्क क्या था दोनों में? ऐसे ही था। तो इसलिए जो है ना मैं समझता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंटली ठीक बात करेंगे, और आपको एक बात का पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको सामने वाले की लिमिटेशन पता हो ना कि ये नहीं कर सकता, और आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए, एंड देन यू फाइंड द मिडिल ग्राउंड इज़ द राइट वे टू गो। और Without battle of egos and wills and all that देखिए, rubbish. again you for when you are dealing with the Of course. bureaucrat you cannot have course. any ego, नहीं Of होनी course. चाहिए, और वैसे भी नहीं होनी चाहिए इंसान के। मतलब बात ये है कि आपके जो राइटफुल क्लेम है उस पर आपको ज़रूर बात करनी चाहिए, यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू टेल देम। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सही बात करेंगे ना तो देर लग सकती है मगर बात हो जाए। मैं वसीम बदामी वाला सवाल पूछ रहा हूँ। वसीम, तेरी इजाज़त से भाई, मासूमाना सवाल है, एल मंडी की, यू आर फ्री नॉट टू आंसर। मैं अपने जो सिंध के दोस्तों से और उर्दू स्पीकिंग भाइयों से जब बात करता हूँ अपना पंजाब का डोमिसाइल दिखा के, कहते हैं तुम्हें डोमिसाइल का एडवांटेज है, तुम्हारा काम हो जाता है, हमारे काम इस्लामाबाद में रुक जाते हैं, ऐसा होता है? आई डोंट थिंक सो। Okay. इसकी वजह ये है कि आई थिंक वी हैव मूव्ड ऑन। शायद हो सकता है पहले कभी प्रॉब्लम रही हो, अब तो जब मैं था तो मैं एक और आपको Please. ज़रूर बात कहूँगा कि एक दफ़ा एक मीटिंग थी यहीं पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी बात थी कि मैं एक तरफ बैठा था, हमारी टीम थी, सामने द मिनिस्टर साहब थे, सामने सबसे पहले पीपल्स पार्टी के लोग थे, फिर जमात इस्लामी थी, फिर एमकेएम थी, फिर पीटीआई थी, फिर पीएमएल-एन थी, और फिर पीएमएल-क्यू थी कराची के अंदर। हालांकि लोग पीएमएल को देखे कहते हैं आप क्यों थी यहाँ? बट फिर भी उनकी भी कुछ है, जैसे निहाल हाशमी I साहब know, of लगे तो course, इनकी of course. कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हाँ, होगी ना हाँ, यहाँ पे। तो मैंने जब सवाल जवाब शुरू हुए तो मैंने मिनिस्टर साहब से कहा कि सर एक बात पे तो के इलेक्ट्रिक को अप्रिशिएट करें आप, कि दो एजेंडा है मुल्क में जिस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपने मुत्तहिद सबको हैं, इकट्ठा कर दिया है। एक इंडिया और एक के इलेक्ट्रिक। वाह। तो मैंने कहा ये हमें तो हंसने लगे कि हाँ यार ये बात तो है। तो मैंने कहा तो सर देखिए ये तो एक हम तो हमारे अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट में हमसे नाराज़ होता है तो हमसे एमकेएम भी नाराज़ होती है, और उसका नाराज़गी की वजह सबसे ज़्यादा ये है कि अगर एक इलाके में पैसे नहीं आ रहे ना, के इलेक्ट्रिक उसको बिजली नहीं दे पाएगा। आप के इलेक्ट्रिक को ठोक दें, लटका दें, जो भी गेम में होगा ना, वो कहेगा यार मुफ्त बिजली कैसे दे। 18th अमेंडमेंट के बाद के कराची के पैसे जो सारे कहते हैं टैक्स पेयर्स के कराची में भी इस्तेमाल होने चाहिए और वो लोगों की बेटरमेंट के लिए लगने चाहिए। नाउ वेयरिंग कराचीज हैट, तो क्या इज दिस अ गुड एडवाइस कि सिंध में अगर वो हो और पैसे हो, टैक्स सही पे हो रहा हो और पैसे इधर लग रहे हो, तो केई के मसाइल रिजॉल्व हो सकते हैं? नंबर 2, केई को अपना इन्वेस्टमेंट प्लान खुद फंड करना होता है, या तो केई को उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो पैसे अच्छा उसमें ये ज़रूर होता है कि कुछ विलेजेस होते हैं जिसकी इलेक्ट्रिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी Right. होती है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको ये कहूँगा कि आई एम श्योर 1.5 महीने में कोई दुनिया तब्दील नहीं हुई होगी, मगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमको जो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के पैसे वो दिया करती थी, बल्कि यहाँ तक भी होता था कि वो पैसे दे देते थे और हमें काम करने में देर लग रही होती थी, रीजंस होते थे। अभी भी जो आप ये देख रहे हैं रेड लाइन और ग्रीन लाइन, इसके अंदर जो यूटिलिटी होती है ना उसको इसके पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि वो अपने पास से फंड नहीं कर सकती। आप कह रहे हैं किसी को कि यार ये तुम्हारा 132 kV का नेटवर्क है, यहाँ पे ब्रिज बनाना है, तो यूटिलिटी कहेगी कि आप मुझे पैसे दें, दूसरा लगा दें, मैं ये तार को लेके जाऊँगा, जब वहाँ पे इसको लाइव कर दूंगा तो इसको निकाल ये दूंगा। कराची वाटर बोर्ड वाले आपके पैसे क्यों नहीं देते? हिस्टोरिकली नहीं देते थे, हाँ। लेकिन 2016 में एक एग्रीमेंट था वो ख़त्म हुआ था, उसके बाद से बड़े रेगुलर पैसे मिल दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल। चलो ये बड़ा अच्छा। कराची का एक्चुअल ओनर कौन है? अब छोड़ दें कई पीछे रह गए, अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये थोड़ा ये सा किसका एक तो शहर पहली है? बात ये कि थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल है, मैं नहीं, अपनी it's तरफ not से जितना controversial. जवाब दे सकता हूँ कि जाहिर बात है पीपल्स पार्टी है कंट्रोल में, मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे मेयर हैं और मैं उनको जानता हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड गाय, कोशिश भी बहुत कर रहे हैं। हमारे साथ भी उन्होंने एक जो एमयू सिटी का एग्रीमेंट किया और अगेन आई वाज वेरी सपोर्टिव। एक तो बहुत थोड़े से पैसे हैं जो इंडिविजुअल देता है, बट अगर आप केएमसी की कलेक्शन देखें विदाउट दैट केई एबिलिटी टू कलेक्ट एंड पे,
वाज वेरी लिमिटेड, और हम जो उनको कलेक्ट करके देते हैं वो उसका डिफरेंस डे एंड नाइट, एंड शायद वो वेबसाइट पे लगा भी रहे कि कितना पैसा कलेक्ट हुआ, कहाँ खर्च हुआ। कराची का शहरी जो है ना वो थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस तो रहा है, एमक्यूएम भी थी। मैं रेफरल दे देता हूँ, ताबिश के शो में आपने चूँकि मुर्जा वहाब का नाम लिया, गए और ताबिश ने उन बेचारों के साथ काफ़ी की, मैं विच आई अप्रूव / डोंट डिसअप्रूव, और लोगों ने उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया। हालांकि मैं इस चीज़ का बड़ा स्टॉन्च बिलीवर हूँ कि जो सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है वो पाकिस्तान पूरे में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और ये काम भी कर रहे हैं। तो उसके बावजूद चलें इनको डांट भी पड़ती है, लेकिन मालिक कौन है शहर का, ओनर कौन है, तकलीफ किसको होती पता नहीं, है? ऐसा नहीं हो मुझे कोई उठा के ले जाएगा, मुझे तो लगता है आपको कोई नहीं उठाता, एस्टेब्लिशमेंट को होना चाहिए उधर होना। तो क्या मसाइल हल हो जाएंगे? मेरे ख्याल में होंगे। मैंने आखिरी जो इस तरह रेड लाइन और ग्रीन लाइन के ऊपर और यूनिवर्सिटी रोड वगैरह के ऊपर जो पुश देखी ना, और आई से वेरी कैंडिडली कि मुझे उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये काम आपको जल्दी करना है, और उस वक्त जो भी हमारी टीम थी दैट इज़ अ वेरी गुड जॉब। ये जो जाम सादिक भेजे इसके ऊपर हमने रातों रात किया, और जब मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी उसके बाद मिला तो उन्होंने कहा कि यार इस वक्त अच्छा प्रेशर है तो लेट्स यूटिलाइज दैट प्रेशर एंड डिलीवर, चाहे पैसे हों चाहे अप्रूवल हो जो भी हो। I think they realize के the responsibility lies on jointly, whether it's establishment, People's Party, MQM। तो बेसिकली कराची का मालिक डंडा अगर हो जाए तो कराची का मसले रिजॉल्व हो जाएंगे। हम डंडे वाली कौम है, ये मान लें, अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर डंडे के हम नहीं चल सकते। कराची का एक मसला जो सब जानते हैं मगर पीपल डोंट टॉक अबाउट इट एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड टू रिजॉल्व इट, वो क्या है? आई थिंक ये जो रोड नेटवर्क है ना, और आप इस्लामाबाद तो जाते हैं ना, कितने दिन में बना है जो ब्रिज है, अंडर पास है इन फ्रंट ऑफ सरीना? बहुत टाइम लगा था, वो बंद रही थी जगह। मैं हम देखिए यहाँ वी कांट कंपेयर। इस्लामाबाद के सामने जो ब्रिज बना है वो सरीना के सामने वाला कितने 2 महीने में बना है, 3 महीने में बना है सर। वो रेड जोन था ना। अच्छा सॉरी, मैं उल्टा कर गया, कराची आप उसे कराची से कंपेयर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर, उधर अभी उन्होंने पता नहीं कितने फ्लाईओवर अनाउंस कर दिए, वो बना देंगे क्या? वजह क्या है? तो ये तो मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से पूछ रहा था कि अगर वहाँ पे वो 2.5-3 महीने में बना देते हैं, और मैं अपनी लोगों से भी कह रहा था उस मीटिंग में, कहा यार वहाँ पे क्या तार नहीं होते, वहाँ पे क्या उनको रिलोकेट नहीं करना होता, तो वाई इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड? बट मनोज भाई एक मिनट ठहरें, अब मैं हैदर अब्बास रिजवी साहब से बात कर रहा था। हैदर भाई मुझे कहते हैं कि सलमान, हमारी जो ऑफिशियल पॉपुलेशन कराची की 3 करोड़ है जो मुल्कों की होती है, जबकि अनऑफिशियल 4-4.5 करोड़ है कि सबब्स भी डाल लें। अच्छा आप अब वो नस्ला टावर अल्लाह ताला उन बेचारे लवाई कीन के लिए आसानियाँ फरमाएं, गैस बिजली पानी का कनेक्शन जब देते हैं, अब जब सुई गैस की कहीं से नीचे पाइप जा रहा है, आपकी तारें जा रही हैं, तो यहाँ मतलब प्लानिंग भी तो कोई चीज़ होती होगी ना? ये इशू बिल्कुल होते हैं, और ये इश्यूज एक ऐसे शहर के होंगे जो नेचुरली नहीं, यानी डिज़ाइन से नहीं बना है, नेचुरली बना है। हाँ। और उस पर ये भी आपको पता है कि हमारे जो नाले हैं उनको बंद कर दिया गया, बहुत सारे इश्यूज़ हुए, जिस तरह से वाटर का प्रॉब्लम रहा, जिसको काफ़ी हद तक ठीक किया है। लेकिन हाँ, अगर आप कहें कि यार सारे तार जो हैं वो ऐसे पैसेजेस में से क्यों नहीं गुजरे, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इस्लामाबाद वगैरह जो है ना, ये सारे बड़े लेटेस्ट शहर हैं, ये पिछले 30-40 साल में बने। यहाँ पे इट्स अ ब्यूटीफुल नेटवर्क, बड़े बेहतरीन। आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि ये अगर दीवार ना, तो यहाँ से पानी गुजर रहा होगा, इसके नीचे गैस होगी, बिजली यहाँ पर होगी, ब्यूटीफुल नेटवर्क्स। कराची शहर का ये मसला तो है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको चाहे 3 करोड़ लोग हो, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे वो 4.5 करोड़ हो, आपको ना उनको शाम में मूव कराना है। आपके पास कोई इम्पॉसिबल विदाउट रोड नेटवर्क। आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उनको 50,000 से लेकर के 80,000 रुपए की मोटरसाइकिल दिलवाएं, और वो मोटरसाइकिल पे बगैर हेलमेट के, बगैर किसी लाइन को देखे हुए वो चले जाएं। गाड़ियाँ, एक गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है, वो लेके जा रहे हैं। मास ट्रांजिट जो बसें हैं उस पर शाम को छतों पे लोग होते हैं। आपने बनाया भी है तो माजरत के साथ, आपने शारा भुट्टो बनाई है, शारा भुट्टो माजरत के साथ सर अमीरों के लिए ऐसे ही है, ठीक है ना, उसमें कोई। मोहनिस भाई अब बहुत हमने सीरियस गुफ्तगू कर ली, मुझे ये बताएं कि आप एक कराची के आम शहरी हैं और आप किसी भी जगह लियाकताबाद में, कुरंगी में, औरंगी में टाउन में रहते हैं, आपका एक बच्चा जिसका सुबह मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम है
और रात को जब वो रिवीजन के लिए उसके लिए बैठा है तो वो उसका लाइट चली गई है और सख्त गर्मी है और मच्छर है और इशा पढ़ के मैं मोनस अलवी हूँ, आपने रात को सीईओ के इलेक्ट्रिक के लिए क्या दुआएं मांगी हो? बद्दुआ, बिल्कुल बद्दुआ देनी होगी, दूंगा। और मैं कहूँगा कि ये कौन लोग हैं जो कि निज़ाम चला रहे हैं, इनको कोई सेंस नहीं है। और मैंने तो बिल भी दे दिया है और फिर भी देखें ये लाइट नहीं है और ये दूसरों की वजह से हमारे साथ इस तरह हो रहा है। बिल्कुल यही फीलिंग। अब आप मोनस अलवी बन के उस इंसान को वो प्रॉब्लम जरूर बता दें। अगर वो मोनस अलवी, और मेरे पास अब यकीन करें कि ऐसे मैसेजेस आते थे और मैं सिर्फ यही बात कहता था, बहुत सौ से बात भी करता था। मैं कहा देखिए हम एक निज़ाम चला है, उस निज़ाम के अंदर, अच्छा इस बात के बावजूद कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अभी भी जो की मैनेजमेंट है वो यही करेगी, लेकिन हमने आपस में एक चीज़ एग्री की थी और हमने एडवर्टाइज भी बता भी दिया था। इंटरनल फैसला ये था कि जिस दिन फील्स लाइक टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर जाएगा उस दिन उतनी देर के लिए लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाएगी जब तक कि वो 45 फील्स लाइक से ऊपर रहेगा। राइट। और इसका एक वो आया था कि मेडिकली कि इस पर डिहाइड्रेशन हो सकती है। और मैं बोर्ड के पास गया था, मैं ऐसा नहीं था कि मैंने खुद से किया था, मैंने बोर्ड को ये कहा था कि देखिए वी आर अ कमर्शियल एंटिटी बट वी आर डूइंग अ सोशल थिंग। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई आदमी गर्मी से मर गया ना तो यार हम कैसे जवाब देंगे। 1 घंटा की एग्जामिशन केई को कॉस्ट करती थी कोई 2 करोड़ रुपए कॉस्ट, स्ट्रेट कॉस्ट। और हमने कई दफ़ा कई घंटे किया था। अब ये जो आदमी है ना, इसको सिर्फ समझाने की बात है, देख ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि हम खाली तुझे बिजली दे सकते। मैं तुझसे हमदर्दी भी कर सकता हूँ, तेरे साथ बैठ तेरी गालियाँ भी सुनूंगा, तू जो बद्दुआएं देगा वो ऊपर जाएंगी। और कुछ लोग दुआएं भी दे रहे होंगे कि यार कई मेहनत कर रहा है, क्योंकि हमारी नीयतें अल्हम्दुलिल्लाह साफ। चलें अब एक तो अल्लाह मियां क्या वो बद्दुआ बैलेंस आउट दुआ से टकरा नहीं, के लेकिन चूंकि आपकी गिर- नीयत नहीं है, सो दैट्स व्हाई एक बड़ा क्विक सवाल का जवाब दें कि अगर ओके यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इफ इट इज अ चैरिटी, मोर ऑफ अ चैरिटी देन अ बिजनेस, अगर मोनस भाई को और ताबिश साहब को, जो पुराने हमारे दोस्त हैं जिन्होंने केई की प्राइवेटाइजेशन, आप दोनों को मौका मिले आप केई खरीद लें एंड यू आर द न्यू ओनर्स, इज दिस प्रॉफिटेबल इनफ बिजनेस कि आप उसको लेके सस्टेनेबिलिटी? प्रूफ हैज टू बी इन द पुडिंग। ओके। और बात ये है कि आपको टैरिफ, जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये अगर आज कहीं को ये इजाज़त मिल जाए ना कि यार ऐसा करो कि तुम डिसाइड कर लो कि वो कौन सा 25% एरिया है जो तुम बिजली नहीं बेचोगे और तुम्हारा टैरिफ हम 10 रुपए कम कर देंगे, कहीं विल बी प्रॉफिटेबल। सो ओके, अगर आप ये कहें ना यू डोंट हैव एन ऑप्शन and you will charge the same tariff whatever is being charged the rest of the country, then the tariff has to be X, which is higher than what it is today, because the cost of business is not being compensated. Koi not a rocket science. So if the cost is not given, it is not profitable. You have to put in money and probably put in money behind bad money, good money behind bad money. So it's not something which one should do. मैं अपना डोमिसाइल इस्तेमाल करते हुए पंजाबी में स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल एग्री डिसएग्री नहीं करना है। मतलब है डंडे वाली सरकार ने मुहल्ला चिश्तियां नूं कोई वादा किया है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ कुछ देंगे ਜਿਹੜਾ पहले नहीं दिता सी। सर ये चिश्ती साहब जाने और वो जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता। By the way, thank you so much. You know, I have so much to talk to you about Karachi, your literal literature से प्यार, आप हर जगह जहाँ सकाफत और कोई अच्छा बड़ा काम हो रहा था, चैरिटी हो रही होती थी, यू ऑलवेज बीन सीन देयर, वील कीप इट फॉर अनदर जो मैं टाइम। बोलूँ जो चीज़ मैं कहूँगा ज़रूर, और जो आपके सवाल से भी है और उसमें एंड करते हैं कि और ताबिश से ही हमने ये बात सीखी थी कि और जो उस आदमी की बात करें ना आप, जिस आदमी के जहन में ये है कि पॉपुलस बात ये है कि आप बिजली दे दें, वो एक आदमी बिजली लेगा, उसका बिल पे करेगा और जो 15 लोग हैं वो पे नहीं करेंगे, मतलब और आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ये पॉपुलस फैसला है। हाँ, तो अगर तो ताबिश ने जो कहा था, जो कि मुझे आई स्टिल रिमेंबर और मैं उसको बहुत कोट करता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बी पॉपुलर देन यू शुड सेल आइसक्रीम, मे बी सेल डिस्ट्रीब्यूट आइसक्रीम।
बिकॉज लीडरशिप इज़ नॉट विनिंग एग्जैक्टली एनेक्डोट जो उनका लीडरशिप इज़ नॉट विनिंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट और पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट लीडरशिप वेर यू हैव टू टेक टफ डिसीजंस ये यू हैव टू हैव दैट कॉन्शियंस के यार ये जो है ना मैं कर रहा हूँ ये इस आदमी के साथ ज़्यादती ज़रूर है बट मेरे अवेलेबल सर्कमस्टेंसेस आर नॉट परमिटिंग मी टू डू मैंने सब कुछ किया है मैंने एयर बंडल केबल लगा दिया मैंने इधर लोगों को बता दिया कि बिल दो बिजली लो मैंने लोगों को डिस्काउंट दे दिए कि यार तेरा 100 रुपये का ड्यूज़ है ना तो Deferred 25 payment रुपये करो, दे दे बिल्कुल सही। राइट ऑफ कर दूंगा 75 बिजली अगले महीने का बिल दे देना कोई कुछ नहीं कर रहा मैं अपने आप को ब्लीड और नहीं एक और कर मिसाल सकते। देता हूँ हाँ, वो मेरी हाँ, मिसाल हाँ, है please, आखिरी प्लीज। मैं लोगों को कहता हूँ कि जब जहाज़ में जब कोई कहता था ना ये कि नहीं आप ये करें तो मैं कहता आप लोगों ने जहाज़ में सफ़र किया है मैंने कहा मैंने तो यहाँ पे भी किया है अमेरिका दुनिया के हर मतलब जिस हिस्से में गया हूँ चाहे फार ईस्ट हो मैंने कहा सब जगह ना एक अनाउंसमेंट करते हैं कहते हैं इंग्लिश में वो ये है कि इफ़ देयर इज़ अ लॉस इन कैबिन प्रेशर योर ऑक्सीजन मास्क विल ड्रॉप इन फ्रंट ऑफ यू put the mask on your face and breathe normally help others when you wear your mask first मैंने कहा सर किसी एयरलाइन ने आज तक ये नहीं कहा कि जब मास्क करेगा ना पुट इट ऑन द फेस ऑफ द अदर पर्सन सिटिंग देन यू वेयर जब आप खुद जिंदा होंगे ना तो किसी को जिंदा रख सकते हैं जब आप खुद ही मर जाएंगे तो सामने वाले को कैसे बचाएंगे वेल डन, एब्सोल्युटली राइट। तो अगर मैं उस आदमी को बिजली दे दूंगा ना तो होगा ये कि मेरे पास उसको बिजली देने के लिए नहीं है कि जो पैसे दे रहा है बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं जिंदा रहूंगा ना तो उसको आज नहीं ना तो 4 दिन बाद बिजली दे पाऊंगा तो कराची के शहरियों मोनिस भाई जाने से पहले कह गए हैं कि अगर ऑक्सीजन मास्क गिरा तो पहले अपने मुंह पे लगाना है, दूसरे वाले की मदद बाद में करनी है। शायर कहते हैं कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझे छुएगा वो मर जाएगा। मोनिस भाई थैंक यू सो मच, व्हाट अ प्लेयर एंड ऑनर।